Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you, welcome to class 4th in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am your maths teacher. Now we will start lesson number 6, geometry. Okay. Now first we will see what you had learned our last classes. So everyone know very well what you had learned our last classes. So student, what you had learned our last classes? Look at there. First you had learned about the point. What is the point? Point is made by the sharp pencil. This is the point and we are giving that point O. We are giving name that point O. Then next is the line segment. What is the line segment? A line segment is the straight path between the 2 points. This is the 2 point A and B and we are draw this line between the 2 point A and B. This is called line segment. This is the line segment AB. This is the sign of line segment. Okay, line segment. And how to read? Line segment AB. How to read? Line segment AB. Next is the line. What is the line? A line segment extending endless on both sides is called line. It does not have a beginning or ending point. Line does not have a beginning point and ending point. This XY, that two dot we are draw in the line okay, this is the line and in this line we are draw that 2 point XY, but line do not have a beginning point and ending point. This is the sign of lines. Two side arrow means this is the line. And how to read that? Line XY. Next is the ray. A ray is the part of line which extending endless in the one direction only. To represent a ray, draw line segment AB and extend it one direction only. Put an arrow marks at the end. This is the ray. Ray have a beginning point but ray do not have a ending point. For example, torch have a beginning point but they do not have a ending points. So this is the sign of ray. And how to read? Ray AB. How to read? Ray AB. Now next is the measuring the line segment. How to measure line segment? By using the ruler. When you measuring the line segment, always start from the 0. कहाँ से start करना पड़ता है? 0 से लाइन को क्या करना है? मेजरिंग करना है. तो हम लाइन को 0 के साथ स्टार्ट करते हैं. ओके, देन हाउ टू ड्रॉ? लाइक दैट. बाय यूजिंग द रूलर you will be make line segment and you will start your line segment from the 0. Then next is the angle. What is the angle? When two ray meet at the one point. This is the point B. Ray A and ray C meet on the point B and here form the angle. This is the sign of angle. What is this? This is the sign of angle. And that point meet in the two ray, it is called vertex. What is this? Vertex. Remember, while naming an angle, the vertex is always in the center. Vertex need in the center. Next topic is the comparing of angle. Okay, here are some birds that we are comparing these birds into the. Okay, this is the bird, 4 birds, and we are counting that birds beak in the angles. Look at there. Here is small angle, then increase, here also increase, and here again increase. So this is the angle. Then next is the type of angle.
So which type of angle? Right angle, obtuse angle, acute angle, straight angle and zero angle. This is the right angles. First is the right angle. So right angle is the 90 degree. Right angle is the 90 degree. Look at the angle. One's arms is the horizontal and the other is the vertical. One is the horizontal and one is the vertical. So this is from the right angle. Which is angle? Right angle. One is the horizontal and one is the vertical. Okay. So horizontal and vertical, there is from the right angle. Right angle is the 90 degree angle. The example in the watch 3 o'clock. This is the example of right angle. Then acute angle. Acute angle is the less than right angle. In the watch 2 o'clock. Okay, here is the 3 o'clock in the right angle. Now 2 o'clock is the less than the 3, means there is from the acute angle. Then obtuse angle. Obtuse angle is the greater than right angle. Look at in the watch. Here is the 5 o'clock. 5 is the greater than 3 o'clock. So there is from the obtuse angle. Next is the straight angle. Which angle? Straight angle. Straight and zero angle. First look at in zero angle. What is the zero angle? 2 angle is the overlooping. Okay. 2 angle is the overlooping. So look at in the watch 12 o'clock, that both hand in the overlooping, means there is the form zero angle. Next is the straight angle. Look at there in the clock 6 o'clock, there is the straight angle. That angle is in the opposite direction. That angle in the opposite direction. Here is form the straight angle. Next is the closed figures. Okay, and open figure. So what is the closed figure? The all side are closed is called closed figures. And what is the open figure? The side is open from one side is called open figure. So look at there. The figures show are closed by straight line segment. They have a 3 or more line segment. Such closed figure are called polygon. Suppose 2 or more line segment are closed in the figure is called polygon. What is this? Polygon. Next is the triangle. Triangle is the polygon because triangle have a 3 line segment, straight 3 line segment. So this is the triangle and he have a 3 line segment, means this is the polygon. Then quadrilateral. What is the meaning of quadrilateral? Quadrilateral means, what is the meaning of quadrilateral? Quadrilateral means 4 sides. Look at the closed figure. The polygon formed by the 4 line segment is called quadrilateral. So this is the example of quadrilateral. Okay. Then rectangle. So what is the rectangle? Rectangle is the quadrilateral. Yes, because rectangle have a 4 side. So 2 side is the opposite side is the equal. Opposite side is the equal. And in the square 4 side are the equal. Then next is the circle. Okay. So how to draw circle? By using the compass we will be draw the circle. So look at there, this is the circle. This is line passing through the center is called diameter, and the line which is draw from the center. The line which is draw from the center is called radius. Okay, this is the radius, this is the radius and this is the diameter. Diameter is the 2 times of radius. ठीक है, डायमीटर हमारे रेडियस से क्या रहती है? 2 टाइम्स रहती है. मतलब हमारा ये हाफ रेडियस है, उससे 2
पार्ट्स क्या है हमारा, डायमीटर है, ठीक है। इसलिए हम डायमीटर इक्वल टू क्या करते हैं, 2 इंटू रेडियस। सपोज हमें डायमीटर दिया है और रेडियस निकालना है, तो हम क्या करते हैं, डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस रहता है, तो उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 के साथ। Then line segment is passing through the center of the circle whose end point line is circum इसका diameter. The diameters of the circle is the twice of radius. Twice रहता है radius का. Diameter equal to 2 radius and radius equal to diameter divided by 2. This is called circumference. Then chord. ठीक है, chord. What is the chord? Chord, the line segment whose end point line on the circle is called chord. The line is, look at there, the point A. We are draw from A lines in anywhere. Okay, हमने क्या किया है, पॉइंट A दिया है सर्कल में और उस वहाँ से हमने क्या किया है, लाइन ड्रॉ की है कहीं पे भी. सो दिस इज कॉल्ड chord. एंड लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज इन द सर्कल इज द डायमीटर. जो हमारी डायमीटर रहती है वो सबसे बड़ा क्या होता है हमारा, सर्कल में से कॉर्ड रहती है, ठीक है. देन बाय यूजिंग द कंपास वी विल मेक द सर्कल. ओके, सो हाउ टू ड्रॉ, बाय यूजिंग द कंपास. फर्स्ट वी विल keep pencil in the compass, then we will measuring from 0 and by using the compass we are draw circle. Okay, now let's we will start. I hope all of you nicely understood lesson. So now let's we will start mathematics A for concept and calculation skill. So look at there, question number 1. Measure the length of the line segment. This is line segment. So we will measure this line how much. So look at there. This is the 6.5 centimeter. How much? 6.5 centimeters. The length of this line segment is 6.5 centimeter. ये कितना है? 6.5 centimeter है. Next is the draw the line segment of length 10 centimeter. यहाँ पे हमें कितने सेंटीमीटर की लाइन निकालनी है? 10. सो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? हम 0 से लाइन स्टार्ट करेंगे और 10 तक लाइन ड्रॉ करेंगे. सो लुक एट देयर. हमने 0 से स्टार्ट किया और 10 तक लाइन निकाली है. नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 2. इन द सर्कल नेम द फॉलोइंग. यहाँ पे एक सर्कल दिया है और इसको नाम लिखना है, ठीक है. लुक एट देयर. फर्स्ट इज द सेंटर. वेयर इज द सेंटर? व्हाट इज द सेंटर? O इज द सेंटर. सेंटर क्या है हमारा? O है. नेक्स्ट इज द डायमीटर. विच इज द डायमीटर इन द सर्कल? कौन सी है डायमीटर? CD इज द डायमीटर. CD हमारा क्या है? डायमीटर से. फिर रेडियस. कौन से रेडियस है हमारे पास? OC, OD एंड OA. दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. रेडियस ऑफ द सर्कल. कौन से रेडियस है? OC, OD एंड OA. दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. एंड व्हाट इज द डायमीटर? C और D ये हमारी डायमीटर है और हमारी रेडियस क्या है? OC, OD एंड OA. देन कॉर्ड. विच इज द कॉर्ड? कॉर्ड कौन से हमारे? अ कॉर्ड अदर दैन द डायमीटर. डायमीटर छोड़ के हमारी कौन सी कॉर्ड है? CA नहीं तो AC. विच? AC. दिस इज द कॉर्ड इन द सर्कल. ओके, नाउ लुक एट द मेजर द रेडियस एंड डायमीटर ऑफ अबव सर्कल. हमें ये जो सर्कल है उसमें से हमें रेडियस और डायमीटर की क्या लिखने हैं? मेजर करके कितना सेंटीमीटर है वो लिखना है. सो लुक एट इन देयर. रेडियस. फर्स्ट हम रेडियस को काउंट करेंगे. कितना आ गया है? 1.5 सेंटीमीटर. हमारी रेडियस कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर. अभी डायमीटर. डायमीटर कितनी होगी? हमारी रेडियस से ट्वाइस होगी, मतलब
2 टाइम्स कितना हो गया हमारा रेडियस 3 सेंटीमीटर। कितना है 3 सेंटीमीटर। रेडियस 1.5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ओके, नाउ लुक एट हियर। हाँ, ऑल ऑफ यू चेक इन यूर टेक्स्ट बुक के मैंने जैसे टेक्स्ट बुक में चेक किया है आप भी चेक कर लेना कि सच में है कि नहीं। नाउ लुक एट इन क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विद द डायमीटर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। हमें क्या दिया है यहाँ पे डायमीटर दिया है 24 सेंटीमीटर और हमें क्या निकालना है रेडियस निकालना है। तो सो व्हाट इज़ द रूल ऑफ डायमीटर। सपोज हमें डायमीटर दिए और हमें रेडियस निकालना है तो हम क्या करते हैं डायमीटर इक्वल टू डायमीटर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या निकालना है रेडियस निकालना है तो हम क्या करेंगे रेडियस इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड बाय 2 करेंगे, हमारी डायमीटर कितनी है 24 है, उसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे। 24 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलता है 12। सो रेडियस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। नाउ लुक एट इन क्वेश्चन नंबर बी। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद द रेडियस इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। हमें रेडियस दिया है, हमें डायमीटर फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे रेडियस इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर है, हमें अभी क्या निकालनी है डायमीटर। सो डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। ठीक है, हमारा रेडियस क्या रहता है डायमीटर से 2 पार्ट मतलब 2 से ज़्यादा रहता है तो 2 एंड 7.5 है तो 7 and 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं हम इसको। तो हमारा डायमीटर कितना आ गया है 7 and 2 को 7.5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 सेंटीमीटर। सो हमारी डायमीटर कितना है 15 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। नेम द ईच एंगल से what type it is. Look at there. First we will give name the angle. This is the angle ABC. कौन सा एंगल है एंगल ABC। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल CBA ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ABC ऐसे भी लिख सकते हैं। सो विच इज एंगल इज फॉर्म, यहाँ पे कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है एक्यूट एंगल बिकॉज दिस इज द स्मॉल दैन द राइट एंगल। ये राइट एंगल से छोटा है, ठीक है। सो हियर इज द एक्यूट एंगल। देन लुक एट देयर, दिस इज द एंगल EFG। इसको EFG ऐसे भी लिख सकते हैं और GFE ऐसे भी लिख सकते हैं। सो विच इज एंगल EFG। नाउ विच इज एंगल इज फॉर्म ऑब्टूस एंगल। कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है ऑब्टूस एंगल फॉर्म हो रहा है क्योंकि ये राइट एंगल से बड़ा है। ओके, दिस इज द ग्रेटर दैन राइट एंगल। नाउ लुक एट देयर दिस एंगल, इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है। सो ऐसे करने के बाद सो विच इज एंगल MNO एंगल। नाउ हमने बुक को ऐसे किया है। सो यहाँ पे कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है राइट एंगल क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों भी लाइन है तो ये यहाँ पे कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है राइट एंगल। दिस इज द एंगल MNO और इसको ONM ऐसे भी लिख सकते हैं एंड विच इज एंगल इज फॉर्म हियर राइट एंगल। नाउ लुक एट हियर द बोथ साइड ऑफ द एंगल इज अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं तब कौन सा एंगल फॉर्म होता है हियर इज द फॉर्म स्ट्रेट एंगल। सो एंगल XYZ इज द स्ट्रेट एंगल। ओके, इसको हम एंगल ZYX ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दिस मैथमेटिक्स A दिस इज राइट इन यूर टेक्स्ट बुक, ठीक है। मैथमेटिक्स A और B बोथ आर यू राइट इन यूर टेक्स्ट बुक, नो नीड टू राइट इन यूर नोटबुक। नोटबुक में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको ये टेक्स्ट बुक में ही लिखना है।
Now look at in mathematics B for higher skill. First is the MCQs. Look at here. Which of these has a fixed length? किसकी लेंथ फिक्स रहती है? लाइन की रहती है क्या? नो, लाइन नॉट हैव अ बिगनिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट. रे, नो, रे हैव अ वन means beginning point but they do not have a ending point. Then line segment have a beginning point and ending point. मतलब इसकी लेंथ कैसी रहती है? फिक्स रहती है. एंड ऑल ऑफ दिस, ये दोनों की लाइन फिक्स नहीं रहती है, तो ये आंसर नहीं आता है. सो आवर आंसर इज लाइन सेगमेंट बिकॉज दैट लाइन सेगमेंट हैव अ फिक्स लेंथ. ओके, सो फर्स्ट आंसर इज सी. Now look at in 2 number. If a vertical line meet a horizontal line, what kinds of angle is formed? अगर हमारी वर्टिकल लाइन है और हॉरिजेंटल लाइन है, वर्टिकल लाइन है और हॉरिजेंटल लाइन है, ये एक पॉइंट पे यहाँ पे मीट हो रहा है, मिल रहा है, तो कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और स्ट्रेट एंगल. हियर इज फॉर्म द राइट एंगल. कौन सा एंगल फॉर्म होता है यहाँ पे? राइट एंगल. हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म व्हेन टू लाइन्स मीट एट द पॉइंट एज शोन. यहाँ पे टू क्या है? लाइन से, ये टू लाइन से यहाँ पे ये क्या हो रहे? लाइन्स मीट, मतलब यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे कितने एंगल फॉर्म हो रहे? 1 2 3 4. कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे? 4. 1 2 3 4. यहाँ पे कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं? 4. देन इफ टू रे स्टार्ट अ पॉइंट, टू रे है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, गो इन द अपोजिट डायरेक्शन. ये यहाँ से स्टार्ट हो रहे, टू रे है और वो दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. कौन से डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो द एंगल बिटवीन देम. सो यहाँ पे कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है दोनों के बीच में? कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? स्ट्रेट एंगल, बिकॉज दे बोथ इन द अपोजिट डायरेक्शन. सो विच इज एंगल इज फॉर्म? स्ट्रेट एंगल. इफ द टू रे स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट, वन पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हो गया था. नाउ दैट बोथ एंगल इज गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब ऐसे जा रहे हैं. ये पॉइंट यहाँ से है, ये ऐसे अभी ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो विच इज एंगल इज फॉर्म हियर? स्ट्रेट एंगल. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Deepu scale is broken at the 0 सेंटीमीटर मार्क. दीपू है, उसकी स्केल जो है वो 0 सेंटीमीटर, उसका क्या हो गया? ब्रोकन हो गया है, कट हो गया है. ही मेजर अ लाइन स्टार्ट फ्रॉम 1 सेंटीमीटर. उसने जो लाइन है उसकी मेजर करना कहाँ से स्टार्ट किया है? 1 से. दिस इज द रूलर. ओके, अभी उसकी रूलर की जो ये जीरो वाली क्या है? लाइन है, ये यहाँ से इसके ब्रोकन हो गए, तो उसने कहाँ से स्टार्ट करना किया है? मेजरिंग करना 1 से स्टार्ट किया है. ही मेजरिंग लाइन फ्रॉम द 1 सेंटीमीटर मार्क्स, जहाँ पे 1 सेंटीमीटर है वहाँ से स्टार्ट किया है. द अदर एंड ऑफ द लाइन सेगमेंट इज 4.5 सेंटीमीटर. व्हाट लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट? उसने 1 से स्टार्ट की थी लाइन, 1 से लाइन स्टार्ट की थी, तो वो उसने उसकी लाइन सेगमेंट कहाँ तक है? 4.5 सेंटीमीटर तक है. सो अगर हम इसको 0 से लाइन सेगमेंट स्टार्ट करते तो वो कितना होगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा? इससे 1 माइनस करना पड़ेगा. तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो हमारी लाइन कहाँ तक जाएंगी? 3.5 सेंटीमीटर. सो आवर आंसर इज 3.5 सेंटीमीटर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी. विच एंगल इज लार्ज? इसमें से कौन सी एंगल लार्ज है? XYZ और MNO.
दिस इज विच इज एंगल, दिस इज द राइट एंगल, यहाँ पे कौन सा एंगल है, राइट एंगल है, एंड दिस इज द विच एंगल, दिस इज द एक्यूट एंगल. सो एक्यूट एंगल इज द स्मॉल देन द राइट एंगल. एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल से छोटा है. तो यहाँ पे कौन सा लार्ज एंगल है, एंगल एक्स वाई जेड इज द लार्ज एंगल. दैट क्वेश्चन नंबर 7. दिस इज द होमवर्क फॉर यू. ठीक है. एंड क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आपको पिक्चर ड्रॉ करना है. यहाँ से देख के सपोज आपको आता है तो निकालना है. दिस इज़ नॉट कंपल्सरी. ओके, आपको आता है तो ड्रॉ करो, नहीं आता है तो नहीं ड्रॉ करना है. सो लुक एट मैथमेटिक्स ए एंड बी. दिस इज़ द होमवर्क. ओके, ये होमवर्क मीन्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. आपको कहाँ लिखना है, आपके टेक्स्ट बुक में ही लिखना है. नो नीड टू राइट notebook. I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.